Hello my dear friends, I am Professor Vayam Khan and this is the part 1 of the new unit number 4, that is steels and cast iron of subject materials and metallurgy. In this particular unit we are going to study the various types of steels, various types of cast irons, their properties, their you can say classification, their designation system, or you can say specification system, and various applications of these steels. So before proceeding to that, I'll again request you to like this video, share this video and subscribe to my channel. So let us begin. So first of all we'll study what is steels, and then we'll study about cast irons. So both of them are alloys of carbon and iron, but the properties are different because the percentage of carbon as well as the percentage of alloying elements are different. So therefore one is called as steel and another one is called as cast irons. Okay, so let us begin with steels. What's a steel, or what is the definition of a steel? So generally in you can say the simple term, in simple way we say that steel is nothing but an alloy of iron and carbon. It is an alloy of iron and carbon, and sometimes there are some other elements also. So in apart from iron and carbon, so there are some other elements like nickel, silicon, then tungsten, molybdenum. Okay, these etc. are other elements which are used for alloying. So basically this steel has iron as the parent element or parent metal and carbon as an alloying element. So the amount of carbon in it usually is less than 1% weight percentage, okay, in your steel. The mechanical properties are very sensitive with respect to carbon. So as the amount of carbon varies, the mechanical properties of this steel varies. Generally from 0.008 to 2% carbon content iron carbon alloy is referred as steel. So for a steel you can say that the maximum amount of carbon is 2%, okay, and for cast iron the amount of carbon percentage is from 2% to 6.67%. So from 2 to above 2%, the iron carbon alloy is referred as cast iron. Okay, so a hard, strong grey or bluish grey alloy of iron with carbon and usually other elements used as structural or fabricating material is nothing but steel. Okay, let us discuss the various ways of classifying steels. So what are the different types of steels, or what are the various ways of classifying steel? अलग अलग तरीके से कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं स्टील का, ये हम देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ कार्बन. पहला टाइप या पहला है क्लासिफिकेशन का तरीका बेस्ड ऑन इट्स परसेंटेज ऑफ कार्बन. मतलब जितना परसेंटेज है, जितना अमाउंट उसका कार्बन का प्रेजेंट है उस स्टील में, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगा. सेकंड वन इज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ अलाइंग एलिमेंट्स. अलाइंग एलिमेंट कितने परसेंट है उसके ऊपर होगा. तीसरा है अमाउंट ऑफ डीऑक्सीडेशन. डीऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन रिमूवल की प्रोसेस कैसी की गई है, इसके बेसिस पर होगा. ग्रेन कॉर्जनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर किया जाएगा. ग्रेन कैसे है, कोर्स है, फाइन है, ओके, ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पर होगा. देन मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसके बेसिस पर होगा. डेप्थ ऑफ हार्डनिंग है, कितनी हार्डनिंग की गई है उसके बेसिस पर होगा. और लास्ट है फॉर्म एंड यूजेस, मतलब किस तरीके का उसका फॉर्म है या किस तरीके के उसके एप्लीकेशन है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगा. सो विल बिगिन विद अमाउंट ऑफ कार्बन. सो फर्स्ट type of classification of steel is based on carbon content. When I am saying carbon content, it means it is plain carbon steel. जब भी हम क्लासिफिकेशन कार्बन कंटेंट के बेसिस पर कर रहे हैं, सो जनरली ये क्या है, प्लेन कार्बन स्टील है. अब मैं आपको थोड़ा सा जस्ट
लिटिल बिट बताता हूँ व्हाट इज प्लेन कार्बन स्टील और व्हाट इज अलॉय स्टील। ओके, सो स्टील इटसेल्फ इज एन अलॉय। स्टील खुद ही एक क्या है, अलॉय है, मिक्सचर है, किसका, आयन और कार्बन का। फिर अलॉय स्टील क्या चीज है, सो अलॉय स्टील क्या रहता है और प्लेन कार्बन स्टील क्या रहता है। इन जनरली प्लेन कार्बन स्टील में जो है सिर्फ हम आयन और कार्बन जो है वो मेन कंटेंट रहता है, आयन और कार्बन। इसमें बाकी के जो अलॉइंग एलिमेंट्स है वो बहुत ही कम रहते हैं या बिल्कुल नेग्लिजिबल रहते हैं, इसलिए इन स्टील्स को बोला जाता है प्लेन कार्बन स्टील। ओके, वही अलॉइंग एलिमेंट्स मतलब अदर देन कार्बन, जैसे मैंने बताया निकेल, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, वैनेडियम। ओके, ये जो सभी एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स को हम अलॉइंग एलिमेंट्स बोलेंगे अदर देन कार्बन। सो ऐसे अदर देन कार्बन अलॉइंग एलिमेंट्स अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा रहते हैं तो उसे अलॉय स्टील बुलाया जाता है। ओके, सो प्लेन कार्बन स्टील क्या है, आयन और कार्बन का मिक्सचर है। इसमें अलॉइंग एलिमेंट्स अदर देन कार्बन बहुत ही नेग्लिजिबल रहते हैं या नहीं रहते बिल्कुल। और अलॉय स्टील क्या है, इसके अंदर अलॉइंग एलिमेंट्स है अदर देन कार्बन, जैसे कि हमारा निकेल, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, टंगस्टन, उसके अलावा क्रोमियम, इसके अलावा हमारा यू कैन से और बाकी के जो भी है सिलिकॉन वगैरह वगैरह, ये सब बोरॉन है, सिलिकॉन है। ओके, ये सभी जो है तो हमारे अलॉइंग एलिमेंट्स बोल के प्रेजेंट इसके अंदर रहते हैं। मैग्नीशियम है। ओके, सो लाइक दिस ये है हमारा प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील, इसके बीच का डिफरेंस। सो जब भी हम ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तब ध्यान में रखना इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ PCS मतलब प्लेन कार्बन स्टील। इसमें 3 वे है क्लासिफिकेशन के, पहला है लो कार्बन स्टील, दूसरा है मीडियम कार्बन स्टील और तीसरा है हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील मतलब आप समझ ही गए होंगे, लो कार्बन मतलब कार्बन का कंटेंट कैसा है, इसमें बहुत कम है। दूसरा मीडियम है, इसमें मीडियम कंटेंट रहेगा कार्बन का। और तीसरा हाई कार्बन स्टील है जिसके अंदर कार्बन का कंटेंट ज्यादा रहेगा। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि स्टील्स आर बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज। इफ इट दैट परसेंटेज इज फ्रॉम 0.08 अप टू 2% अगर है तो उसको स्टील बोलेंगे, और 2% से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, कास्ट आयरन। सो ये प्लेन कार्बन स्टील जो है, इसमें लो कार्बन स्टील जो पहला टाइप है, इसमें कार्बन का कंटेंट जो रहता है वो बहुत कम रहता है। ओके, सो इट वेरीज फ्रॉम 0.08 टू 0.30% कार्बन, और यू कैन से 0.3% तक क्या रहता है इसमें कार्बन कंटेंट रहता है। If the carbon content is more than 0.3% up to 0.6%, then it is called as medium carbon steels. और यही कार्बन कंटेंट अगर 0.6 से लेके 2% तक रहता है तो इसे बोला जाता है हाई कार्बन स्टील। ओके, अगेन these are all plain carbon steels. ये सभी क्या है, प्लेन कार्बन स्टील है। ओके, ये सभी कैसे हैं, प्लेन कार्बन स्टील है। नो अलॉइंग एलिमेंट, कोई भी अलॉइंग एलिमेंट इसमें नहीं है। ओके, सो ये पहला टाइप है क्लासिफिकेशन का। सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स। अब अलॉइंग एलिमेंट आ गए हैं, मतलब हमारा निकेल आ गया है, कोबाल्ट आ गया है, वैनेडियम है, ओके, टंगस्टन है, ओके, देन मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ओके, सल्फर है, क्रोमियम है। ये सभी मेरे क्या है, अलॉइंग एलिमेंट्स हैं। ओके, ये सभी अलॉइंग एलिमेंट्स है। ये अलॉइंग एलिमेंट्स कुल मिलाकर मतलब टोटल इनका अगर किया जाए, सो इफ दिस टोटल इज लेस देन 10% ऑफ इट्स वेट, टोटल वेट के अगर ये 10% से कम रहता है, ओके, मतलब अगर 100 ग्राम मेरा वेट है, 100 ग्राम पूरे अलॉय का, अगर पूरे स्टील का अगर वेट है 100 ग्राम और इसमें 10% से भी मतलब 10 ग्राम से अगर अलॉइंग एलिमेंट्स कम है, टोटल मिलाकर 10 ग्राम से अगर कम है तो ऐसे अलॉय स्टील को बोला जाएगा लो अलॉय स्टील। ओके, और वही अगर ये 10% से ज़्यादा है टोटल वेट के, अगर इनका अलॉइंग एलिमेंट्स का वेट अगर 10% से ज़्यादा है तो इन्हें बोला जाएगा हाई अलॉय स्टील।
ओके, सो लो अलॉय स्टील एक है टाइप, और दूसरा क्या टाइप है मेरा, हाई अलॉय स्टील। इसमें मीडियम वाली जगह नहीं है। ओके, लो अलॉय स्टील एंड हाई अलॉय स्टील। ओके, जिसमें भी टोटल कुल मिलाकर अगर अलॉइंग एलिमेंट्स 10% से कम रहते हैं तो उसे लो, और कुल मिलाकर 10% से ज्यादा रहते हैं तो उसे हाई अलॉय स्टील बोला जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डीऑक्सीडेशन। व्हाट इज डीऑक्सीडेशन? डीऑक्सीडेशन क्या रहता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं हम डीऑक्सीडेशन। ओके, अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्यों करना है? देखिए, स्टील जो है हमारा स्टील, इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ओके, सिंस देयर इज आयरन, अगर ये आयरन हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में या उसमें प्रेजेंट वाले ऑक्सीजन के साथ में अगर कंबाइन होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मतलब क्या फॉर्म होती है, रस्ट, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं, राइट। सो ये कोरोजन नहीं होना चाहिए या उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, रस्ट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, डी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करते हैं। इस डी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के बेसिस पर 3 टाइप के हमारे पास में स्टील्स बनते हैं। एक रहता है रिम्ड स्टील्स। रिम्ड मतलब क्या, रिम नाम का उसके ऊपर एक थिन स्किन फॉर्म होता है आयरन ऑक्साइड का, जो बाहरी ऑक्सीजन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ओके, सो इसको बोलते हैं रिम्ड स्टील्स। इट इज द काइंड ऑफ डी ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द स्टील। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ डीऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस जिस स्टील पे की जाएगी उस स्टील को बोलेंगे हम रिम्ड स्टील्स। ओके, रिम्ड स्टील्स। अगेन कुछ अमाउंट में अगर रिमूव करते हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, रिम्ड बोल रहे हैं, कुछ अमाउंट में। जैसे कि स्किन पे का है, बाहर के सरफेस पे का अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर सिर्फ ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं तो उसे हम रिम्ड स्टील बोलेंगे। रिम यहाँ पर थिन स्किन को बोला गया। ओके, तो थिन स्किन ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टील, सो दिस इज रिम। इन केस ऑफ किल्ड स्टील्स, ऑल ऑक्सीजन, जितना भी ऑक्सीजन है वो पूरा की पूरा क्या किया जाएगा, स्टील में से निकाल दिया जाएगा। कोई भी तरीके का गैस अगर इसके अंदर रहता है तो स्टील हमारा खराब होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी टाइप का ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट है वो सभी गैसेस में से क्या करते हैं, हम उसको रिमूव करते हैं। अब ये रिम्ड किल्ड जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये सभी प्रोसेस हम कास्टिंग के दौरान ही करते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं कि अलग से सेपरेटली कोई प्रोसेस की जाएगी। सो किल्ड स्टील में पूरा की पूरा जो ऑक्सीजन है वो क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और तीसरा टाइप है सेमी किल्ड स्टील, जिसके अंदर बैलेंस्ड हम रखते हैं, थोड़ा सा अमाउंट में रिमूव किया जाता है, कुछ अमाउंट में जहाँ पर चाहिए वहाँ से रिमूव किया जाता है, जहाँ पर चाहिए वहाँ पर रखा जाता है, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ से उसे क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। सो दिस इज सेमी किल्ड स्टील विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैलेंस्ड स्टील। इन दोनों का बैलेंसिंग वो करता है। ठीक है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डीऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन कोर्जनिंग। सो व्हाट इज ग्रेन कोर्जनिंग? द वर्ड कोर्जनिंग कम्स फ्रॉम कोर्स। कोर्स मतलब रफ ग्रेन जो रहते हैं, या क्या बोलेंगे, थोड़े से मोटे मोटे जो ग्रेन रहते हैं उसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन कोर्जनिंग, जिस टाइप के उसके ग्रेन कोर्जनिंग की गई है, मतलब हमारी जो ग्रेन मॉडिफिकेशन ट्रीटमेंट्स है, हीट ट्रीटमेंट्स है, उनका जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर ही किया जाएगा। तो अगर हमारे स्टील के अंदर इसके ग्रेन अगर कोर्स दिखते हैं, यानी कोर्स ग्रेन वाली उसके ऊपर ही ट्रीटमेंट की गई है, तो इसको बोलेंगे कोर्स ग्रेन स्टील्स। और अगर फाइन वाले दिखते हैं, मतलब छोटे स्मूथ दिखते हैं, एकदम बारीक, तो अगर ऐसे ग्रेन दिखते हैं तो इसको बोला जाएगा फाइन ग्रेन स्टील्स। अगेन नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कौन सी मेथड से हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके बेसिस पर भी स्टील का क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि ये अलग अलग मेथड्स है स्टील फॉर्म करने के। देखो, स्टील कहाँ से आता है, आयरन और कार्बन के मिक्सचर से आता है। आयरन कहाँ से आता है, आयरन ओर्स से मिलता है। सो आयरन ओर्स को हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं फर्नेस के अंदर, फिर उसके अंदर कार्बन ऐड करते हैं, फिर उसकी कास्टिंग बनाई जाती है, फिर रोल्स वगैरह वगैरह वगैरह, इंगॉट्स का फिर रोलिंग होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें, जैसा हमको शेप चाहिए, शीट चाहिए, ओके, रोल्स चाहिए, बार चाहिए, हॉलो बार चाहिए, हॉलो शाफ्ट चाहिए, वगैरह वगैरह जितने प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, फिर हम उसके बाद में
बनाते हैं, राइट। बट इसके पहले ये क्या किया जाता है, फर्नेस में डाला जाता है आयरन ओर। आयरन ओर के साथ में क्या डाला जाता है, हमारा कार्बन, और अगर अलॉइंग एलिमेंट्स है तो अलॉइंग एलिमेंट्स भी यहीं पर ऐड किए जाएंगे। ओके, सो ये जो फर्नेस यूज हो रहा है या जो मेल्टिंग प्रोसेस यूज हो रही है, इस प्रोसेस की बेसिस पर भी स्टील को क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि जैसी फर्नेस यूज की जाएगी या जो टाइप का फर्नेस यहाँ पर यूज किया जाएगा या जिस टाइप का प्रोसेस यूज किया जाएगा, उसके बेसिस पर भी स्टील की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है, वेरी होती है। अब उसमें पहला टाइप है बेसिक ओपन हर्थ, मतलब बेसिक ओपन हर्थ फर्नेस रहता है, खुला फर्नेस, जो आप कई बार देखते हैं आपके वर्कशॉप में भी अवेलेबल रहता है। ओपन हर्थ फर्नेस रहता है, इसके अंदर आप स्टील को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, फिर वो हैडल से लेंगे, फिर वो कास्टिंग में डालेंगे वगैरह वगैरह। सो अगर वो बेसिक ओपन हर्थ से निकला है तो उसे बेसिक ओपन हर्थ के हिसाब से क्लासिफाई किया जाएगा। इलेक्ट्रिक फर्नेस रहता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस थोड़ा फास्ट रहता है, उससे भी किया जाएगा। एसिड ओपन अर्थ रहता है, जिसके अंदर ओपन अर्थ के साथ एसिड यूज किया जाता है। बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस है, उससे भी स्टील को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। देन देयर इज एसिड पीसीमर प्रोसेस, इसमें भी हम स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस है जिसकी मदद से स्टील बनता है। तो जिस टाइप से स्टील बन रहा है, जिस प्रोसेस से स्टील बन रहा है, उसका नाम दिया जाएगा। जैसे जो एसिड पीसीमर है, एसिड ओपन अर्थ है, ओके, इनके नाम उसके पहले क्या लगाए जाएंगे, स्टील के पहले लगा दिए जाते हैं। इनकी कोडिंग आगे मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल इतना काफी है। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ हार्डनिंग, हार्डनिंग की जो डेप्थ है, जिस प्रकार का उसके ऊपर हार्डनिंग की ट्रीटमेंट किया गया है, उसके बेसिस पर भी इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो कुछ रहते हैं नॉन हार्डनेबल स्टील्स। नॉन हार्डनेबल मतलब इसमें आते हैं हमारे प्लेन कार्बन स्टील, बेसिकली प्लेन कार्बन स्टील्स आते हैं, उसमें से भी लो और मीडियम कार्बन स्टील आते हैं जो हार्डनेबल नहीं रहते हैं बिकॉज ऑफ लेस कार्बन कंटेंट एंड लेस अलॉइंग एलिमेंट। ओके, सो जो हार्ड नहीं किए जा सकते हैं स्टील्स, ऐसे स्टील को हम नॉन हार्डनेबल स्टील्स बोलेंगे। नॉन हार्डनेबल जिसकी हार्डनिंग नहीं की जा सकती। ओके, फिर रहता है शैलो हार्डनेबल स्टील्स। शैलो मतलब हल्का फुल्का, शैलो इन्स लाइक पार्शियली वो हार्डनेबल स्टील्स रहते हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील है या दूसरे कोई लो अलॉय स्टील्स हैं, ओके, जिनके ऊपर शैलो हार्डनिंग की गई है, कम हार्डनिंग उसके ऊपर की जा सकती है, ऐसे स्टील्स। देन डीप हार्डनेबल, जिसमें आते हैं हाई कार्बन स्टील्स और हाई अलॉइंग स्टील्स। ओके, सो डीप हार्डनेबल मीन्स जिनका डीप हार्डनिंग किया जा सकता है, कोर तक उनको हार्ड बनाया जा सकता है। सो ये है डेप्थ ऑफ हार्डनिंग के बेसिस पर। और ये हमारा सबसे लास्ट वाला है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड यूजेज। सो जैसे बॉयलर स्टील्स है, जिसका यूज बॉयलर के शीट्स के लिए किया जाएगा, बॉयलर बनाने के लिए किया जाएगा। ओके, सो इसका जो फॉर्म है वो बॉयलर के शेल के जैसा है, इसलिए इसको बॉयलर स्टील्स बोला जाता है। यूज बॉयलर में होता है इसलिए उसको बॉयलर स्टील बोलते हैं। देन केस हार्डनिंग स्टील्स है, मतलब जिसके ऊपर केस हार्डनिंग की है, ऐसे स्टील्स। देन कोरोजन एंड हीट रेजिस्टेंट स्टील्स है, मतलब जो कोरोजन को रजिस्ट करते हैं, साथ ही साथ में हीट को रजिस्ट करते हैं, ऐसे स्टील्स हैं। डीप ड्राइंग स्टील्स, मतलब जिनकी बहुत लंबी लंबी वायर्स बनाई जा सकती है, जिनको डीप ड्रॉ किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल स्टील्स, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में यूज होंगे। फ्री कटिंग स्टील्स, मतलब जिनको हम इजीली कट कर सकते हैं। ओके, फ्री कटिंग स्टील्स मतलब जिनको हम आसानी से कट कर सकते हैं, ऐसे स्टील्स को बोलते हैं फ्री कटिंग स्टील्स। फिर मशीनरी स्टील्स हैं, जिनको हम मशीनरी में यूज करेंगे, जैसे कि हमारे बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, चक रहते हैं, जॉज रहते हैं, ओके, बहुत सारे, इनके लिए वो यूज किए जाएंगे, हेड्स के लिए यूज किए जाएंगे। देन स्ट्रक्चरल स्टील है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाएगा, जिसके बार्स आप देखते हैं कई बार 8 mm, 12 mm, 16 mm वगैरह वगैरह, इस टाइप की उनके अलग अलग साइजेस रहती है। TMT टाइप रहता है, थर्मिक्स रहता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। सो ऐसे स्टील जो स्ट्रक्चर्स में यूज किए जाते हैं सिविल में, सो स्ट्रक्चरल स्टील्स बोलते हैं। टूल स्टील्स है, जो हमारे से बहुत रिलेटिव है, बहुत रेलिवेंट है, सॉरी। टूल स्टील्स जैसे कि जो टूल्स के लिए यूज किए जाएंगे, फिर उसमें हमारे
कोल्ड वर्क रहने दो, हॉट वर्क रहने दो, या फिर हमारे सादे चीजल्स रहो, स्क्रू ड्राइवर रहो सादा, या हमारा हैमर रहो, फिर हैमर से लेके हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहो, या हमारा HSS का टूल रहो, कार्बाइड टिप वाला टूल रहो, ऐसे टूल्स जो स्टील से बनाए जा रहे हैं, ओके, उसको हम बोलेंगे टूल स्टील्स। ओके, इनका जनरली जो स्ट्रेंथ है, जो हार्डनेस है, जो वियर रेजिस्टेंस है, या कोरोजन रेजिस्टेंस है, या हीट रेजिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है एज कम्पेयर विद दी अदर। ओके, देखिए इसमें हम अलग एलिमेंट्स अलग अलग ऐड करते हैं, कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड की जाती हैं। ओके, सो टू एनहांस इट्स प्रॉपर्टीज, सो दीज आर दी टूल स्टील्स। जनरली इसको हम HSS के नाम से भी जानते हैं, हाई स्पीड स्टील भी बोलते हैं कई बार। ओके, HSS। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स। इन नेक्स्ट वीडियो विल study about the specification of steels based on your standards। जैसे कि स्टैंडर्ड्स में आते हैं फिर आपके इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन डेजिग्नेशन जो स्टैंडर्ड है वो जो दिया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन से, और दूसरा है AI, SI या फिर SAE।